मनदीप पुनिया को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। पत्रकारों पर हमला नहीं चलेगा। On Sunday, January 31st, journalists from several independent and digital platforms gathered to register their condemnation against the arrest of Mandeep Punia and demanded his release. Punia and another journalist, Dharmender Singh, were detained by the Delhi police at Singhu border on Saturday. While Dharmender has been released, Mandeep Punia remains in custody. He has been charged under sections 186, 353, 332 and 34 of the Indian Penal Code. The sections are for obstructing public servants from discharging duty and causing hurt to public servants discharging duty. A silent march is now being conducted by the journalists, and they're walking towards the Press Club of India. We several journalists were at Singhu border, and Mandeep and me were at different locations. I got a call from my fellow journalist that Mandeep has been picked up by police. It was, I think, around 6:30. It was quite dark. So then I was asked to just rush to Alipur police station, and there we went. There were 18-20 journalists, and we asked them. He said कि ऐसा तो हमें मालूम नहीं है, यहाँ इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, आप बेशक हमारा लॉकअप देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा। तो हम वहाँ खड़े रहे, हमें रात के 12 बजे तक till 12, they didn't say anything, Then the rumors start coming in that he has been picked up by special cell. Someone is saying that you cross-check with NIA police station of the area. And then around 12, then I just put my foot down and just say कि आप report लिखिएगा कि हमारा बंदा missing है, there are no whereabouts, we don't know the location of our journalist, and it's a grave concern in the face of the video where the policemen were, beating him and taking him away, frisking him away. So then, they refused to give us the FIR. In the morning, a lawyer came and, lawyer was handed over the copy of the FIR. Then we were told that Mandeep would be produced before the duty magistrate at Rohini Court, being Sunday. And then suddenly, at 2 p.m. they told us. Then suddenly, between 12:30 and 1, a police gypsy just, took him away, and we discovered in the morning, and we reached the Samaipur Barli police station. He was kept at Samaipur Barli police station, which has no jurisdiction of the Singhu border, from where he was taken, as visible in the video also. We all know it. So, and the kind of charges, I think most of us have gone through the FIR. It's a very highly erroneous FIR in which he said that he is part of the protest, and he fell down in a nala. So this kind of erroneous FIR has been written, and there were charges against him of this stopping a police officer from doing his duty, this kind of whatever they do. So this is the scenario. Then we came to know that he is being taken to Tihar Jail Courts Complex, where he would be produced before the duty magistrate. But it is learnt, then I had to come here also, because my job was done, getting the lawyer introduced to the police team, just whatever wakalatnama had to be signed. So I just came to know that he was produced ahead of the 2 p.m. scheduled at 2 p.m. time. So this kind of scene is there. So his wife will be here, and couple of other persons, who were present there at the Tihar Jail Courts Complex. They would be briefing us the update. They will be updating us. Several journalists condemned the police action. जिस तरह से उठाया गया है मनदीप पुनिया को और उनके साथ ही एक और जर्नलिस्ट को, ये बड़ी चिंता की बात इसलिए है कि पत्रकार को अगर इस तरह से इंटिमिडेट किया जाएगा पुलिस के द्वारा, तो फिर जर्नलिज्म कैसे होगा, पत्रकारिता कैसे होगी। हमारी कोई मांग नहीं है यहाँ पर। ये सब लोग इसलिए आए हुए हैं, सारे पत्रकार, कि हम आकर बैठेंगे और हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे कि हम अपना काम कर सकते हैं कि नहीं। दिल्ली जैसे देश की राजधानी दिल्ली में अगर पत्रकारों को इस तरह से वो किया जाएगा, और पत्रकार को उठा के ले गए, कोई बताने वाला नहीं है कि कहाँ है, 24 घंटे तक उसकी कोई खोज खबर नहीं है, तो
ये किस तरह के जगह पे हम रह रहे हैं? कोई ये क्या अथॉरिटेरियन, कोई इस तरह की तानाशाही चल रही है जहां पुलिस किसी को जानकारी नहीं देगी कि कौन पत्रकार को उठा लेंगे राजधानी दिल्ली में और उसकी कोई खबर नहीं है, 12 घंटे 18 घंटे उसके परिवार को नहीं पता, हमको नहीं पता। हम ये चाहते हैं जितने भी पत्रकारों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है इस तरह के काम ना हो, वो वापस लिए जाएं। मनदीप पुनिया को जिस तरह से उठा के उसको हटाया जाए, वो वापस लिया जाए और आगे से इस तरह की चीज़ें ना हो, ये हम लोगों की डिमांड है। और जहाँ तक जो स्थिति है उसकी बात है, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस लगातार, अब तो बहुत लंबी सीरीज हो गई, आप CAA NRC प्रोटेस्ट देख लीजिए, आप दिल्ली के दंगों को देख लीजिए, आप अब देख लीजिए ये जो स्थिति है, लगातार एक पैटर्न पे काम कर रही है। ऐसा लग रहा है कि जो भी सरकार या उसके खिलाफ कुछ बोलेगा उसके खिलाफ इस तरह से कार्रवाई पुलिस करेगी या उसको दबाने का काम करेगी। इसके खिलाफ काम है। अब ये हाई टाइम है कि पुलिस इस चीज़ से बाज आए या इस तरह की चीज़ों को ख़त्म करे, ये हम लोगों की डिमांड है। वरना पत्रकार कैसे किसी, अगर उसके काम करने का माहौल सुरक्षित नहीं होगा तो बाकी लोगों से हम क्या बात करेंगे? बाकी लोगों की बात करेगा, उसके राइट्स की बात, उसके हक की बात करना बात की बात है। पत्रकार को ही आप एक हेल्दी माहौल और एक सुरक्षित माहौल नहीं दे पा रहे हैं, ये ज़रूरी है। ये हम लोगों की डिमांड है, इसीलिए ये सारे लोग आए हैं। और ये लोग कोई ऐसा किसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत कोई ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं आए हैं, उठे हैं लोग। सुबह सबको लगा कि हमें आना चाहिए। पुलिस की कार्रवाई जो है वो बहुत एक तरफा है, गलत है, गैर कानूनी है, उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए, इसलिए आए हैं यहाँ। मतलब जो इंडिपेंडेंट है उसको पीछे कोई नहीं है, तो उसको कौन बचाने आएगा? तो कैसे आप जाते हैं, इंडिपेंडेंट रिपोर्टर हैं तो आपको कहीं जाना है तो पुलिस वाले पूछते हैं कि आप कौन हो, तो आप कहते हो कि हम पत्रकार हैं, तो बोले कि अपना कार्ड दिखाइए। अभी जो स्वतंत्र पत्रकार है उसके पास तो कार्ड नहीं है, तो उसको वो गाली दे के भगाएगा। तो कुछ दिन पहले जैसे हम जा रहे थे, उन्होंने बैरिकेडिंग दोबारा सील कर दिया इसको, तो वहाँ अंदर नहीं जाने दिया जा रहा कार्ड के बिना, तो फिर उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और हमें भगाया तक गया वहाँ जी कि मतलब आप चले जाइए इधर से, इस तरह से मतलब गाली भी दे रहे हैं, डंडा भी, लठ भी मारने लगे थे पुलिस वालों के पास जो होता है। तो ऐसे काम होते रहते हैं। और मनदीप के साथ, मतलब मनदीप बहुत ज़्यादा डेंजरस, खतरनाक काम कर रहा था, क्योंकि वो सरकार को एक्सपोज कर रहा है कि मतलब जो लोग आए हैं वो लोकल नहीं है, वो तो बीजेपी के वर्कर हैं, कहीं से आए हुए हैं। सरकार और पुलिस का रवैया मतलब बहुत एक शब्द है, बहुत भारी है और वो गैर जिम्मेदाराना है। वो भूल गई है कि लोगों के लिए उसकी कोई जिम्मेदारी बनती है और वो भूल गई है कि लोग उस गैर जिम्मेदारी को उस आवाज़ के रूप में दिखा रहे हैं। जो 2 लाख 10 लाख 50 लाख लोग वहाँ पर बैठे हैं, वो भूल गई है, उस आवाज़ को देखना भूल गई है। उसने अपने आँख कान नाक सब कुछ बंद कर लिया, लेकिन अभी जिंदा है, आवाज़ें अभी जिंदा है और उठती रहेगी। ये पहली चीज़ तो ये है कि ये कोई नया नहीं है, एक पैटर्न का पार्ट है जो आप किसी भी मूवमेंट में आप देख रहे हैं कि आप जो लोग आंदोलन को लेके कुछ भी पॉजिटिव काम कर रहे हों, जो अदरवाइज डायरेक्टली आंदोलन के पार्ट ना हो, उनको आप किसी ना किसी तरीके से अटैक करें। कभी आप किसी इंटेलेक्चुअल को अटैक करें, कभी कभी मीडिया, कन्हैया कुमार के समय पत्रकारों का, मतलब आपको जहां मौका मिल जाए आप तमाम उन लोगों के को परेशान करने या उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करें जो आपके अदरवाइज आपको लगता है कि ये आपके दुश्मन हैं जी। तो एक तो ये पैटर्न का हिस्सा है। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि एक अच्छी चीज़ भी इसमें दिख रही है, वो यह है कि आप क्या सरकार और पुलिस क्या ऐसे लोग जो जिनको बमुश्किल मान लीजिए कि 10,000 20,000 लोग शायद फेसबुक पर देखते होंगे, पढ़ते होंगे, वो भी एक आध वीडियोज़ को देखते होंगे उतने, बाकी हर वीडियो को, हर पोस्ट को उतना कोई देखता भी नहीं होगा, क्या उनके काम से भी सरकार को दिक्कत होने लगी? इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म है, जो न्यू मीडिया का जर्नलिज्म है, जो लोग अपने से कुछ कहने बोलने करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी ताकत का भी अंदाज़ा लग रहा है। और मैं इस पॉजिटिविटी में एक और चीज़ देख रहा हूँ कि लोग उनको सुन रहे हैं, लोग उनको पढ़ रहे हैं, लोग उनको मान रहे हैं। तो मैं अगर पत्रकारिता के दायरे में देखूँ तो इस गिरफ्तारी से एक बार फिर मुझे भरोसा हो रहा है कि जो इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, खासकर यंग लोग जो काम कर रहे हैं, डिफरेंट आउटलेट्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, अपने फेसबुक वाले हैं, ट्विटर वाले हैं, तो उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है और लोगों का उन पर भरोसा है। ये एक ब्यूटीफुल चीज़ मुझे दिख रही है। A Delhi court today rejected the bail plea of Punia and sent him to 14 days of judicial custody. His bail application is listed for hearing on Monday.